Hello everyone, myself Dr. Vinita Rathod, Associate Professor of Zoology at SMB Government PG College, Nathadwara. Today in the fourth part of biogeochemical cycles, we will discuss about oxygen cycle. The cycling of oxygen between biotic and abiotic system is called oxygen cycle. Oxygen cycle is a gaseous cycle where the atmosphere serves as the major reservoir for oxygen gas. Oxygen is found in free state in the atmosphere as oxygen gas and in dissolved state in water. It is liberated as a byproduct of photosynthesis and it is utilized in respiration by plants and animals. The oxygen taken up by living organisms is used for the oxidation of various food products like carbohydrates, proteins and fats. जैविक एवं अजैविक तंत्रों के मध्य ऑक्सीजन के प्रवाह को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। ऑक्सीजन चक्र एक गैसीय चक्र है तथा इसका मुख्य निचय कुंड वायुमंडल है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस स्वतंत्र रूप से एवं जल में घुलनशील अवस्था में उपस्थित होती है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के प्रतिफल स्वरूप सह उत्पाद के रूप में निर्मित होती है एवं पादपों तथा जंतुओं द्वारा श्वसन हेतु प्रयुक्त होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सजीवों द्वारा शर्करा, प्रोटीन एवं वसा के ऑक्सीकरण हेतु किया जाता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न होते हैं। When the living organisms respire, carbon dioxide is liberated, which is utilized by green plants as an essential raw material for carbohydrate synthesis. Certain amount of atmospheric oxygen is converted into ozone. The ozone forms an umbrella-like structure or an umbrella-like layer in the outer atmosphere. This layer prevents the ultraviolet radiations from reaching the Earth's surface. Carbon monoxide is released from volcanoes. This carbon dioxide is a very unstable gas, so it combines with the oxygen to form carbon dioxide. सजीवों की श्वसन क्रिया द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, उसकी कुछ मात्रा का उपभोग कर पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा शर्करा निर्माण करते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन की कुछ मात्रा ओजोन में परिवर्तित होकर बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत का निर्माण करती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ज्वालामुखी के उद्गार से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो कि अस्थायी होती है तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। In addition to carbon monoxide, the oxygen gas combines with a variety of elements to form compounds. Like when oxygen combines with carbon, it forms carbon dioxide. When oxygen combines with hydrogen, it forms water molecules. And when oxygen combines with nitrogen, it forms nitrates. The oxygen is returned to the air by two main methods. The first one is photosynthesis and the second is photodissociation. कार्बन मोनोऑक्साइड के अतिरिक्त ऑक्सीजन अन्य तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न यौगिकों का निर्माण भी करती है, जैसे कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होकर के जल का निर्माण करती है तथा नाइट्रोजन के साथ संयुक्त होकर नाइट्रेट्स का निर्माण करती है। ऑक्सीजन पुनः वायुमंडल में निम्न दो विधियों के द्वारा मिलती है। पहली विधि प्रकाश संश्लेषण और दूसरी छायांकन। Photosynthesis. Photosynthesis is a process by which the green plants synthesize carbohydrates from water molecules and carbon dioxide in presence of sunlight. During photosynthesis, the water molecules break up into hydrogen and oxygen. Oxygen is released into the atmosphere and hydrogen is trapped and turned into carbohydrates. The second procedure is photodissociation. Water vapors is associated by radiations
from the sun and releases hydrogen and oxygen gas. In this way, a simple yet vital oxygen cycle is maintained in the ecosystem. कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा मुख्य रूप से शर्करा एवं ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के साथ मिलती है और सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है, तब पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करी जाती है। प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऑक्सीजन पुनः वायुमंडल में मिलकर ऑक्सीजन चक्र को पूरा करती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निम्नवत उत्पन्न होती है। जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 12 जल के अणुओं से मिलते हैं और इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है, तब ये मिलकर के ग्लूकोज के रूप में शर्करा का निर्माण करते हैं तथा 6 अणु जल के तथा 6 अणु ऑक्सीजन के उत्पन्न होते हैं। वायुमंडलीय तथा पानी में घुलित ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की सह उत्पाद है। पौधे तथा जंतु ऑक्सीजन का श्वसन में उपभोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पुनः वायुमंडल एवं जल में लौटा देते हैं। दूसरी विधि जिसे हम छायांकन कहते हैं, छायांकन के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित वाष्प की बूंदें सूर्य की किरणों से अपघटित होकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का निर्माण करती है। इस प्रकार जैव चक्र द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखा जाता है। This figure shows flow of oxygen in biotic and abiotic system. The main reservoir of oxygen is atmosphere. The atmospheric oxygen is taken up by living organisms during the process of respiration. By the process of respiration, the food products which are stored in the tissues of living organisms are oxidized to form carbon dioxide, water, and energy. The oxygen is soluble in water also, so aquatic organisms take up the dissolved oxygen which is present in the water and they utilize this oxygen for respiration, and food is oxidized with the help of this oxygen. The reaction is like this. Glucose, that is C6H12O6, in presence of oxygen, it converts 6 molecules of carbon dioxide plus water molecule and energy is liberated. The energy so liberated is utilized to perform various functions by living organisms. The carbon dioxide released by the process of respiration is utilized by green plants for the process of photosynthesis. During photosynthesis, the carbon dioxide molecules reacts with the water molecule in presence of sunlight by green plants and formation of glucose, that is C6H12O6, takes place, and water molecule and oxygen molecules are also produced during the process of photosynthesis. The oxygen so produced is again released in the atmosphere and water to be circulated again for respiratory process by the animals. So in this way, the movement of oxygen occurs in the environment by respiration and photosynthesis. The photodissociation also takes place in the atmosphere, where the water vapors dissociates by the presence of ultraviolet radiations from the sun, and this water molecule break up into hydrogen ions and hydroxyl ion. These hydrogen ions and hydroxyl ions either combines together to form water molecule again, or hydroxyl ion break up to form nascent oxygen, and two nascent oxygen combines together to form oxygen
which again enters into the atmosphere to increase the amount of oxygen to be utilized by living organisms. The oxygen dissociates to form nascent oxygen, and this nascent oxygen, when combines with one molecule of oxygen, then it forms ozone layer. This ozone layer prevents high energy ultraviolet radiations of the sun to enter on the earth. So this ozone again break up to form nascent oxygen, and the nascent oxygen combines together to form molecule of oxygen, which again returns to the atmosphere, and in this way the oxygen cycle completes. इस चित्र के द्वारा हम ऑक्सीजन साइकिल कैसे जैविक और अजैविक तंत्र के मध्य पूरा किया जाता है उसको आसानी से समझ सकते हैं। ऑक्सीजन का जो मुख्य स्रोत है वो है वायुमंडल। वायुमंडलीय ऑक्सीजन सजीवों द्वारा श्वसन के लिए प्रयुक्त की जाती है और इस श्वसन की प्रक्रिया में विभिन्न कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है, जिसमें उन कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म में संचित भोजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है और साथ ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसकी रिएक्शन हम ऐसे समझ सकते हैं, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो इसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इसके द्वारा 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, जल का मॉलिक्यूल तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा सजीवों द्वारा विभिन्न जैविक गतिविधियों को संपादित करने के लिए यूज की जाती है। जल में भी घुलनशील होती है ऑक्सीजन और जितने भी जलीय जीव होते हैं वे इस घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन हेतु करते हैं और उनके द्वारा भी श्वसन के पश्चात फूड प्रोडक्ट्स का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है पुनः वायुमंडल में मिल जाती है और वायुमंडल में मिली हुई यह ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्रीन पादपों से पुनः शर्करा का निर्माण करती है। जब फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा शर्करा का निर्माण होता है तो उसी के साथ जल तथा ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं। जलीय जीव भी जब श्वसन करते हैं तो वे जल में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और जो जलीय पादप हैं वे इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करके प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु मिल करके शर्करा का निर्माण करते हैं और वहां भी शर्करा के निर्माण के साथ ही जल तथा ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में निर्मित होता है। ये ऑक्सीजन पुनः वायुमंडल में जाकर के मिल जाती है। कभी जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उन ज्वालामुखियों से भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निर्मित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही अस्थायी गैस है और ये तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर परिवर्तित हो जाती है, जिसका पुनः उपयोग फोटोसिंथेसिस के द्वारा कर लिया जाता है। वायुमंडल में जो वाष्प के कण उपस्थित होते हैं ये प्रकाश के द्वारा डिसोसिएट हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन या तो पुनः मिलकर के वाष्प या जल का निर्माण कर लेते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन पुनः टूटकर विघटित होकर के नेसेंट ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और ये नवजात ऑक्सीजन दो नवजात ऑक्सीजन मिलकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निर्मित कर लेते हैं जो कि पुनः वायुमंडल में समाहित हो जाता है। ऑक्सीजन की कुछ मात्रा वायुमंडल के ऊपरी भाग में हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या पराबैंगनी किरणें जो कि सन के द्वारा आती हैं उससे पृथ्वी पर आने से रोकने का काम करती है, क्योंकि ये किरणें ऑक्सीजन को नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित करती हैं। ऑक्सीजन
नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिल करके एक ओजोन की परत बना लेती है, जो कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में स्थित होती है। और इस ओजोन की परत के द्वारा अत्यधिक ऊर्जा वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जिनसे पृथ्वी पर नुकसान हो सकता है, उनको रोकने का काम इस ओजोन परत के द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार से ऑक्सीजन जैविक तथा अजैविक तंत्र के मध्य में गमन करती हुई अपना चक्र पूर्ण करती है।